A warm welcome, students. We are from Rise Bansal classes, and myself Monojit sir from chemistry. And in my last two videos, I have discussed two intricate questions related to JEE Advanced. And today I am going to discuss in brief the topic that is precise concept related to spherical harmonics. ये जो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे, व्हाट मे बी द करेक्ट ऑर्बिटल नोटेशन इफ द वेव फंक्शन इज, तो ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, इसका अप्रोच कैसे कर सकते हैं, ये जानने के लिए स्फेरिकल हार्मोनिक्स को थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम बोलेंगे कि कैसे इस जो थ्योरी है वो अप्लाई करके ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट जान लेते हैं कुछ. The Schrodinger wave equation in three-dimensional form we can write as del 2 psi by del x square plus del 2 psi by del y square plus del 2 psi by del z square plus 8 pi square m by h square into e minus v into psi that equals to 0. हम लोग जानते हैं कि थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है वो ये है, और इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर psi प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर e माइनस v इंटू psi दैट इक्वल्स टू 0. यहाँ पर जो डेल स्क्वायर होता है इसे हम कहते हैं एक्चुअली लैप्लेशियन ऑपरेटर. दिस इज कॉल्ड एज Laplacian operator that equals to del 2 dx2 plus del 2 del y2 plus del 2 del z2. ठीक है, ये इसे हम कहते हैं Laplacian operator. तो if you solve this equation, three dimensional wave equation, then we get the value of psi x y z, means the value of psi n, l and m. Principal quantum number, azimuthal quantum number, and m is the magnetic quantum number. Okay, from that we can depict the correct orbital notation of the orbital responsible for that. अगर ये जो थ्री डायमेंशनल इक्वेशन है श्रोडिंगर का, वो हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स या पोलर कोऑर्डिनेट में अगर लेना चाहे तो कैसे हम कर सकते हैं एक्चुअली. In spherical polar coordinates, let us take this is z-axis, this is x-axis, and this is suppose y-axis. And if we take any point P over on space, r theta phi इनका कोऑर्डिनेट है, और ये एक्चुअली तो हम ये OP जुड़ सकते हैं. उसके बाद if we take a perpendicular Q and if we connect it with the point O, and this is the angle called as phi and this is the angle called as theta, and we can easily draw one perpendicular from that side. So this is actually r vector, this is OP distance. This is in spherical polar coordinates. We have taken one point P, r theta phi, this is the coordinates. So this xyz is the Cartesian coordinate and r theta phi is the spherical polar coordinates. Then we can correlate these Cartesian coordinates with the spherical polar coordinates as, means we have to take the projection of this r vector along z axis, x axis and y axis. तो कैसे आएगा, z equals to r cos theta, x equals to r sin theta cos phi, and y equals to r sin theta sin phi. This is the projection of r along z axis, x axis and y axis. Okay, now x square plus y square plus z square, if you take the value of this one, then we can have the value of z square is x square plus y square plus z square is actually r square. ये जो चीज़ है वो आपको
थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये जो कॉन्सेप्ट था वो एक्चुअली हम लोगों ने यूज़ किए। कैसे हो सकता है ये, मीन्स ये हम कर भी सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। एक्स स्क्वायर का है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर cos square theta. Now from here, if we take common of r square sin square theta, दोनों में common है, तो ये actually आ जाएगा cos square phi plus sin square phi plus r square cos square theta. Now r square sin square theta, because we know cos square phi plus sin square phi equals to 1. So r square sin square theta plus r square cos square theta. Now if we take common r square, then it will come sin square theta plus cos square theta. That means this is equals to r square. Okay, so we can prove that x square plus y square plus z square, that means that is the correlation between the Cartesian coordinates and the spherical coordinates, right? And जो श्रोडिंगर को जो वेव इक्वेशन है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, वो हम शाई आर थीटा फाई, इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे आर आर थीटा थीटा एंड फाई फाई, आर आर थीटा थीटा एंड फाई फाई. Here आर आर correspond to the radial part of the wave function and theta theta phi phi, this is called as, मैंने पहले भी बोला था, इसे कहते हैं एंगुलर डिपेंडेंसीज. दैट मीन्स ये जो आर आर जो पार्ट है ये एक्चुअली डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, और थीटा थीटा फाई पाई इट्स एक्चुअली डिपेंड अपॉन एल एंड एम एल, राइट. ये दोनों मीन्स रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट दोनों मिलकर ये जो शाई आर थीटा फाई इनको एक्सप्रेस करते हैं. दिस इज द वेव फंक्शन फॉर एनी ऑर्बिटल, right? And this is the correlation between the Cartesian and the polar coordinates. And particularly for s orbital हम लोग जानते हैं, if particularly for s orbital, in case of s orbital, the wave function completely depends upon the value of r, that means radial part, because there is no angular part involved. That's why s orbital is spherically symmetrical. For s orbital, ये जो थीटा और फाई इनका जो वैल्यू होता है वो होता है एक्चुअली 1/4 पाई टू द पावर हाफ. दैट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. ओके, फॉर पीजेड ऑर्बिटल थीटा एंड फाई वैल्यू ये होता है एक्चुअली 3/4 पाई टू द पावर हाफ cos थीटा. ओके, एंड पर्टिकुलरली फॉर 3z स्क्वायर ऑर्बिटल थीटा और फाई इनका जो वैल्यू होता है एक्चुअली वो होता है 5/16 टू द पावर हाफ इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा -1. ये चीज़ आपको याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें एक्चुअली थोड़ा सा अगर जानिएगा तो अच्छा रहेगा. तो ये एक्चुअली दैट मीन्स इन केस ऑफ p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल, अब देख लीजिएगा कि फॉर s ऑर्बिटल देयर इज ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट? एजीमुथल क्वांटम नंबर l वैल्यू इज 0. But in case of p orbital, the value of L is 1 and d orbital L is 2. That means particularly in this curve orbital, the wave function depends upon the angular part. The wave function depends upon the angular part. That means theta theta and this phi phi part, right? तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों को अगर समझ में आए कि कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स है और पोलर जो कोऑर्डिनेट्स है, इनमें हम कोरिलेट कर सकते हैं श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन से, और वेव इक्वेशन से सॉल्व करके हम ये जो प्रोजेक्शन करके हम लोग ये जो इक्वेशन में हम आ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इक्वल्स टू आर स्क्वायर. बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट था वो हमने सेकेंड जो क्वेश्चन था वो सॉल्व करने के लिए हमने यूज़ किए. तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था एक्चुअली. पहले जो क्वेश्चन था देख लीजिए, व्हाट मे बी द करेक्ट ऑर्बिटल नोटेशन इफ द वेव फंक्शन इज, ये शाई वैल्यू दिया हुआ है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, 3 cos स्क्वायर थीटा -1. देख लीजिए पहले सो कि वी नो दैट व्हाट इज नोड. सपोज अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. हम लोग को देखना पड़ेगा कि वी नीड टू फाइंड आउट द नोड. नोड मीन्स वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज द 0. दैट मीन्स इट इज द पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, राइट?
So here node only possible when we make this term actually 0. This means this, देखिए ये जो cos square theta जो term है, this belongs to the angular part, right? This is belongs to the angular part. हम लोग जानते हैं कि थीटा जो है उसे कहते हैं एक्चुअली जेनिथ एंगल एंड फाई इज कॉल्ड एज द एजीमुथल एंगल, राइट? सो cos स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू एंगुलर पार्ट. यहाँ पर जो कोई जो पार्ट नहीं है, जिसको रेडियल जो पार्ट नहीं है, जो जिससे हम ये निकल सके कि रेडियल नंबर ऑफ रेडियल नोट क्या है, तो हम लोगों को निकलना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स वी नीड टू फाइंड आउट. सो हाउ वी कैन डू दैट? इफ वी मेक 3 cos square theta minus 1 equals to 0, because we know that node means the probability of finding electron is 0. That means the wave function becomes 0 at that point, right? So the value of cos theta, that equals to plus minus 1 by root 3. That means here L has two values. One is plus 1 by root 3, another is minus 1 by root 3, right? So L equals to 2, that correspond to particularly which orbital? 3D z square orbital, particularly for 3D orbital, right? Particularly for 3D orbital, because बाकी जो ऑर्बिटल जो हैं p ऑर्बिटल के लिए एक वैल्यू का 1 होता है L का वैल्यू, और s जो होता है इसके लिए L का जो वैल्यू होता है वो एक्चुअली 0 होता है, ठीक है? और हमने ये भी देखे एक्चुअली जे पर्टिकुलरली फॉर dz स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है? ये जो थीटा और फाई जो टर्म होता है वो एक्चुअली होता है 5/16 टू द पावर हाफ 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. मीन्स वेव फंक्शन से भी इट इज़ क्वाइट क्लियर एंड ऑब्वियस दैट इट इज़ पर्टिकुलरली फॉर 3D z स्क्वायर ऑर्बिटल. हम लोग जानते हैं कि z स्क्वायर जो 3D जो ऑर्बिटल होता है, 3D z स्क्वायर जो ऑर्बिटल एक्चुअली होता है, ये क्या कैसे होता है एक्चुअली 3D z स्क्वायर? सपोज z स्क्वायर dz स्क्वायर 3 मीन्स हियर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट? अब देख लीजिए कि particularly for 3D orbital, the value of n is equals to 3, the value of L equals to, that means 2, okay? That means the value of angular node actually 2, and if we calculate the number of radial nodes, that will be n minus L minus 1, that equals to 0. That means particularly for 3D orbital there is no radial node, only there are 2 angular nodes are present. So from this concept we can ensure that the correct orbital notation which corresponds to the wave function is 3D z square, okay? Like that only with the help of spherical harmonics we can solve this kind of question, because here रेडियल पार्ट से हम कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया, ये यहाँ पर कैसे क्या करना पड़ेगा? ये जो एंगुलर जो पार्ट है इसको हमको 0 करना पड़ेगा. अगर 0 हमने किए तो एल का 2 वैल्यू आया, एक प्लस 1 बाई रूट 3, एक माइनस 1 बाई रूट 3. एल का 2 वैल्यू मतलब 2 एंगुलर नोड से, लेकिन रेडियल नोड अगर 3D देखे इनका रेडियल नोड क्या होता है एक्चुअली? इनका रेडियल नोड 0 होता है, राइट? एंड वी ऑल नो दैट इन dz स्क्वायर ऑर्बिटल इसका जो शेप एक्चुअली होता है वो एक्चुअली इस तरह से होता है एक्चुअली, ठीक है? और यहाँ पर एक नेगेटिव सर्कुलर डिस्क है, यहाँ पर एक नेगेटिव सर्कुलर डिस्क है, ठीक है? दिस इज एक्चुअली z एक्सिस, 2 lobes along z axis, and in the xy plane there is no nodal plane in z square orbit dz square orbital, but in the xy plane there is a negative circular disk. इसे कहते हैं नेगेटिव सर्कुलर डिस्क. ये जो शेप होता है थोड़ा सा पिकुलर होता है, क्योंकि बाकी जो d ऑर्बिटल्स है उनका जो शेप होता है वो 4 lobes होता है. पर्टिकुलरली फॉर z स्क्वायर ऑर्बिटल द शेप इज लाइक दैट. देयर इज नो नोडल प्लेन, बट देयर इज अ नेगेटिव सर्कुलर डिस्क प्रेजेंट इन द xy प्लेन, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट हियर 2 एंगुलर नोड्स होता है, ठीक है? तो इस तरह से स्फेरिकल हार्मोनिक्स से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. बाकी जो क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो था, फॉर द 2s इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, द R2s ए वेव फंक्शन दिया हुआ है, और इन पे क्या एक्चुअली एस इज द एंगुलर पार्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है? हम लोगों ने ये प्रूफ किए, अभी हम लोगों ने एक्चुअली प्रूफ किए इस इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इक्वल्स टू आर स्क्वायर. दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ओके? तो ये चीज़ अगर आपको ध्यान में है तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर इनमें निकालना है कि नंबर ऑफ रेडियल नोड कैसे हो सकता है, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, 2 माइनस सिग्मा दैट इक्वल्स टू 0, देन सिग्मा इक्वल्स टू
2. ओके, एंड सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिग्मा इक्वल्स टू 2, दैट इक्वल्स टू 2ZR by NA naught, 2ZR by NA naught, and they are particularly talking about the 2s orbital. That means here value of n equals to 2, okay, for 2s orbital, for 2s orbital. The value of n equals to 2 for 2s orbital. If we put this value, the value of R, it will come 2a naught by z. 2a naught by z. The value of R will come 2a naught by z. Okay, to it. What is a naught? A naught is the Bohr radius. And what is z? Z is actually the effective nuclear charge experienced by the electron in an orbital, which is very, very important, right? So we know that that x square plus y square plus z square, that equals to r square, right? Therefore, here the value of r square equals to 2a naught by z square. That means this is the correct answer for that. Okay? तो हम लोगों ने क्या देखे? हम लोगों ने देखे कि श्रोडिंगर जो इक्वेशन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में 3 डायमेंशनल इक्वेशन है, और स्फेरिकल में जो इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और इन दोनों को कंबाइन करके जो इंटर कोरिलेशन है, कोरिलेशन मतलब क्या है? कोरिलेशन मतलब ये जो पार्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन the Cartesian and the polar coordinates, right? And this theta is called as a zenith angle and phi is called the azimuthal angle. Here we have taken the projection of R along 3 axes, z equals to r cos theta, x equal to r sin theta cos phi, and y equal to r sin theta sin phi, right? And psi r theta phi we can express as the product of r theta theta phi phi, where r is the radial part and theta theta phi phi is the angular part, right? For s orbital there is no angular part because the value of L equals to 0. That means there is only radial part, only radial node is possible for s orbital, right? But for p orbital and d orbital the value of L is 1 and 2 respectively, so that's why there is a possibility of angular nodes, right? And particularly for pz orbital the value of theta phi equals to, this is the value, this is the constant cos theta, that means theta term is involved, that means angular dependencies are involved, and particularly for this z square orbital, dz square orbital 5/16 to the power of 3 cos square theta minus 1. देखिए ये अगर क्वेश्चन आपको, ये टर्म आपको याद रहे तो ये जो क्वेश्चन था, देखिए एग्जैक्टली द सेम टर्म हैज बीन गिवन 3 cos square theta minus 1, राइट? सो ये अगर आपको याद रहे तो ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो इस तरह से हम लोगों ने देखे कि कैसे कॉम्बाइन करके स्फेरिकल हार्मोनिक्स और श्रोडिंगर इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये कॉम्बाइन करके हम दोनों ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ द वेरी इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट, आई मस्ट से, एज आई सेड मेनी टाइम्स, दैट दिस इज द particularly for JEE advanced topic, and if you know the small precise things, then it will be good for you people to crack this JEE advanced question, क्योंकि स्फेरिकल हार्मोनिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं. लास्ट 2017 में दिया था, तो अभी भी देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटीज, बट दिस इज़ नॉट सो टफ एक्चुअली. इफ़ यू अंडरस्टैंड थिंग्स करेक्टली देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू डू गुड इन द एग्जाम, राइट? सो ऑन दिस नोट आई जस्ट वांट टू कंक्लूड दैट आई होप यू लाइक दैट वीडियो, एंड हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और अच्छे बहुत बढ़िया क्वेश्चन और उनके बिहाइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट डिस्कशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अबाउट हाउ टू अप्रोच ए क्वेश्चन. ओके, एक क्वेश्चन देख के कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट को हम जीरो करेंगे. सपोज फॉर डी ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल ले जाइए, 3D ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड नहीं है क्योंकि वैल्यू ऑफ एन इज़ एक्चुअली 3, राइट? सो इनको एंगुलर नोड से हमको अप्रोच करना पड़ेगा. तो ये जो चीज़ें वगैरह, ये चीज़ सीखना और ये इनका अप्रोच को अप्लाई करना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो हम लोग के साथ जुड़े रहिए, एंड इफ़ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. सो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.